Hi everyone, welcome to my YouTube channel. And I'm hoping that you are doing well and also preparing for your MBA entrance exams. So, from today's video, I'm going to start a series called NM Paglu. Yeah, you heard it right, NM Paglu. So, in this series, first of all, I will start with giving you information about NMAT exam, information about NMIMS college, different colleges that accept NMAT exam, then preparation strategy for NMAT, etc., etc. Also, after that, I will try to teach you some important topics that come in NMAT exam and how to ace them. So before starting, आप सोच रहे होंगे कि like am I the right person to teach you about NMAT exam or not, and how how you can trust me. So first of all, I will tell you about myself. I have given CAT exam twice, first in 2023 and then in 2024. So in 2023 season, I have scored 73 percentile in CAT, 241 in NMAT, and 95 percentile in SNAP. And then cut to 2024, I have scored 97.33 percentile in CAT, 258 in NMAT, and 99.54 percentile in SNAP. So yeah, I have aced the NMAT exam twice, first in 2023 and then in 2024. Also this year, I have converted NMIMS Mumbai Core College with a merit rank of 609, and hopefully like I will join NMIMS college, but still I'm waiting for some other results to come. So yeah, I have aced the exam twice, so you can trust me. And I recently I have recently gone through the whole process of preparing for NMAT, then giving the exam, then preparing for the competency test, then giving that and giving the interview, and then getting the convert of NMIMS college. So you can trust me. So let's start the video. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एनमेट एग्जाम देना भी क्यों चाहिए? मार्केट में इतने सारे एग्जाम है, कैट, स्नैप, सैट, देन देयर आर सीईटी, देयर आर डिफरेंट एग्जाम, एमएचसीईटी, then XGMT, MyCat, etc., etc. So why you should appear for NMAT? So first of all, NMAT is easier than CAT. Yes, you heard it right. If you see, in 2023, I scored 73 percentile in CAT, but still I aced NMAT exam. So yeah, it's easier than CAT. Also, the competition in NMAT is relatively lower as compared to CAT. So if you are facing some difficulties in preparing for CAT, or if you are scoring low in CAT marks, you should definitely target NMAT. Also, there are various good colleges that accept NMAT exam. First is NMIMS Mumbai, then NMIMS Bangalore, and all the other campuses of NMIMS. Then there is TAPMI, which is a very good tier 2 college. XIMB HR program, which is also an amazing college. Then KJ Somaya. Then there is SGA Bakoni. These are all good colleges that accept NMAT exam. Suppose like you are not able to give your best on the day of CAT or maybe SNAP, that NMAT is a good backup for you. And NMIMS Mumbai is a tier 1 college which has been there for more than 40 years, and their average package is 25 LPA. So in my opinion, आपको NMAT exam miss तो नहीं करना चाहिए. It can be a good backup option for you. And जब आप convert कर लो different colleges, then you can decide कि मुझे NMIMS जाना है, IM जाना है, MDI जाना है, IFT जाना है, etc. etc. बट अभी जितनी भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, यू हैव टू ग्रैब दैट. सो इसमें तो कोई क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए कि मुझे एनमैट देना है या नहीं देना. उसके बाद आता है कि एनमैट चलो आपने डिसाइड तो कर लिया कि आपने देना है, तो अब एनमैट के पैटर्न वगैरह के बारे में बता दीजिए. तो एनमैट में 3 सेक्शन होते हैं. फर्स्ट इज लैंग्वेज स्किल्स, देन लॉजिकल रीजनिंग, एंड देयर इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. Similar to B section, there are 3 sections in CAT also, there are 3 sections in NMAT also. But the difference comes here. In NMAT, you can decide which section you have to attempt first. There, once go for a mock or maybe the NMAT exam, they will ask that which section you have to decide first, give first, then which you have to attempt second, and which you have to attempt third. So they give you full freedom. Also, NMAT give you a 45 days window in which you can give your NMAT exam. Yeah, you heard it right. So there will be different slots, and you can give the exam according to your convenience. Like इतना तो like कोई भी नहीं कर रहा है, convenience, and इतना student friendly exam कोई नहीं होता. Also, you can give the NMAT exam thrice. बस NMIMS and some colleges जो होते हैं वो आपका first attempt consider करते हैं, but like other colleges में आपका best of 3 लगता है. तो अगर आप like first exam में अगर आप अच्छा नहीं score कर पाए, तो आप उसको 15 days बाद फिर से दीजिए. अगर तब भी नहीं कर पाए तो फिर like वो cooling period के बाद आप फिर से थर्ड टाइम भी दे सकते हैं एग्जाम. तो यार, दिस द एडवांटेज ऑफ NMAT एग्जाम. इसमें आप अपने हिसाब से सेक्शंस चूज कर सकते हैं. उसके बाद अपने हिसाब से डेट चूज कर सकते हैं, अपने हिसाब से सेंटर चूज कर सकते हैं, अपने हिसाब से टाइम चूज कर सकते हैं. सो लाइक इट्स अ वेरी स्टूडेंट फ्रेंडली एग्जाम.
अब एग्जाम के ऊपर आते हैं, तो इसमें ई सेक्शन में 36 क्वेश्चन होते हैं एंड इट्स एन एडेप्टिव एग्जाम। तो इसमें जो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो आपके प्रीवियस परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कि लास्ट के 5 क्वेश्चन ईज़ी थे बट आपने अटेम्प्ट नहीं कर पाए उसको, फॉर एग्जाम्पल आप गलत हो गए, तो आपको जो छठा क्वेश्चन आएगा वो भी ईज़ी आएगा। बट अगर आपने लास्ट में फॉर एग्जाम्पल 3-4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करे तो फिर आपको एक लेवल ऊपर वो क्वेश्चन आएगा। देन अगर आपने वो भी अच्छे से अटेम्प्ट करा, देन द डिफिकल्टी लेवल विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। बट अगर आप डिफिकल्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपको मार्क्स भी हायर मिलते हैं। अगर आप इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहते हैं तो आपको मार्क्स भी कम मिलते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको पेपर देते हुए लग रहा है कि आपको तो सारे इजी क्वेश्चन आ रहे हैं और आप करे जा रहे हैं, बट आपने एंड में देखा कि आपके मार्क्स तो बहुत कम है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लाइक कुछ कुछ उसमें से बीच में नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे, बट स्टिल यू आर गेटिंग अ गुड स्कोर। सो लाइक इट्स एन एडेप्टिव एग्जाम, सो यू हैव टू प्रिपेयर वेल फॉर दैट, बिकॉज इन इंडिया बहुत कम एग्जाम्स होते हैं जो एडेप्टिव हो। तो एनमैट एग्जाम में 3 सेक्शन है, 108 क्वेश्चन है, 36 क्वेश्चन फॉर ईच सेक्शन एंड इट्स अ 12 एग्जाम। द मैक्सिमम यू कैन स्कोर इज 360। आपको लैंग्वेज स्किल्स के लिए 28 मिनट मिलते हैं 36 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और लॉजिकल रीजनिंग यू गेट 40 मिनट्स टू सॉल्व 36 क्वेश्चन एंड फॉर क्वालिटेटिव स्किल्स यू गेट 52 मिनट्स टू सॉल्व 36 क्वेश्चन। एंड बिलीव मी, it's not enough to solve all these questions, especially in cons and the language skill, the time is not enough कि आपको 28 मिनट में 36 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इट्स लेस देन अ मिनट फॉर अ क्वेश्चन। एंड इसमें आरसीज भी आते हैं, ग्रामर आती है, पैराचैम्बल, सिनोनिम, मेटोनिम, इडियम फ्रेजेस। सो आपको इसमें प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं। एंड अ डिफरेंट थिंग अबाउट एनमैट इज यू कैन नॉट स्किप एनी क्वेश्चन। आपको कुछ ना कुछ तो तुक्का मारना ही पड़ेगा, तभी आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। एंड इसमें आपको गेस वर्क भी आपका अच्छा होना चाहिए कि आपको एजुकेटेड गेस मारना है कि फॉर एग्जांपल दो उसमें ऑप्शन में कंफ्यूज हैं, तो आपको एक क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट यू कांट स्किप एनी क्वेश्चन, तो आपको एजुकेटेड गेस लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने अगर टाइम वेस्ट कर दिया तो आपके आगे के क्वेश्चंस रह जाएंगे। एंड वैसे इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट अगर आपको क्वेश्चन एंड में मान लो फॉर एग्जाम्पल 36 मान लो 36 क्वेश्चन है एंड आप अभी 28 पे पहुंचे हो एंड आपका टाइम अप हो जाता है, आप आखिरी के 8 क्वेश्चन नहीं कर पाए, तो आपको कुछ पेनल्टी मिलेगी। एंड वो पेनल्टी एनमैट वाले डिस्क्लोज नहीं करते। ऑल्सो ईच क्वेश्चन के मार्क्स के एनमैट वाले डिस्क्लोज नहीं करते कि आपको इस क्वेश्चन के 3 मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स मिलेंगे, 4 मिलेंगे, 5 मिलेंगे, इसमें कुछ भी मिल सकता है, 3.5 वो डिपेंडिंग ऑन डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चन होता है, वो भी एनमैट वाले डिस्क्लोज नहीं करते हैं। तो आपको इसके लिए प्रैक्टिस पहले से करनी होगी, एनमैट के मॉक्स देने होंगे, ऑफिशियल भी एज वेल एज फ्रॉम डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। ऑल्सो स्पीड बेस्ड एग्जाम है, तो आपको स्पीड पे काफ़ी फोकस करना पड़ेगा। बट इसमें एक फ़ायदा है कि क्वेश्चंस थोड़े रिलेटिवली ईज़ी आते हैं, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो फिर क्वेश्चंस भी थोड़े ईज़ी आते हैं। देन कम आफ्टर लैंग्वेज स्किल, देन द सेक्शन कम क्वांटिटेटिव स्किल। इसमें अरिथमेटिक, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, एसआईसीआई, परसेंटेजेस, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, और इसमें क्वांटिटेटिव स्किल्स में भी डीआई आ जाता है, बार ग्राफ एंड पाई चार्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस। एंड वो भी वेरी करता है कि किसी को 2 डीआई के सेट आ रहे हैं, किसी को 3 डीआई के सेट आ रहे हैं, बिकॉज़ इट्स एन एडेप्टिव एग्जाम। एंड आपके अपना जो क्वेश्चंस हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं आपके साथ वाले से। और हो सकता है कि आपको अरिथमेटिक के 2 क्वेश्चन आए, किसी आपके साथ वाले को 3 आए, किसी को 4 आए, तो इट वैरीज अ लॉट। बट अगर आप एनमैट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको नंबर सिस्टम एंड मॉडर्न मैथ्स पे फोकस करना ही होगा, अगर आपको इसमें क्वांटिटेटिव स्किल्स को एज करना है। आई नो कि और एग्जाम्स में नंबर सिस्टम और एक मॉडर्न मैथ्स, स्पेशली कैट में तो बहुत ही कम आता है, बट आपको एनमैट के लिए आपको प्रिपेयर करना ही होगा, नंबर सिस्टम एंड मॉडर्न मैथ्स। एंड एक एनमैट का ये फायदा है क्योंकि बहुत अच्छे ज्योमेट्री से रहते हैं, एनमैट में यूजुअली ज्योमेट्री नहीं आती। तो फॉर एनमैट यू कैन स्किप ज्योमेट्री, बट आई वुड एडवाइज कि आप बेसिक ज्योमेट्री कर लो, क्योंकि अगर बाय चांस किसी एक सेट में या उस दिन आपका लक खराब हुआ और एक क्वेश्चन भी ज्योमेट्री आ गया, क्योंकि अगर ज्योमेट्री आएगी तो बहुत बेसिक सी आएगी कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे। अब बेसिक फॉर्मूला रिवाइज कर लो, क्योंकि आपको वैसे भी कैट एंड स्नैप वगैरह के लिए ज्योमेट्री पढ़नी है, तो आप वैसे भी आपको कुछ अलग से नहीं करना है एनमैट के लिए, बट यूजुअली एनमैट में ज्योमेट्री नहीं आती है। देन लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन आता है, एंड फॉर लॉजिकल रीजनिंग यू हैव टू क्रिटिकल थिंकिंग, assumption based क्वेश्चन, डिडक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर 36 क्वेश्चन है तो अराउंड डिपेंडिंग ऑन योर सेट 18 टू 22 क्वेश्चन, मे बी 16 टू 24 क्वेश्चन आपके इस रेंज के बीच में आएंगे ही आएंगे क्रिटिकल थिंकिंग डे। उसके अलावा तो आपको क्रिटिकल थिंकिंग पेस करनी पड़ेगी एनमैट एग्जाम के, अगर लॉजिकल रीजनिंग को आपको करना है।
Then there are series-based question, blood relation, syllogism, puzzle, coding, decoding एंड कोडिंग डिकोडिंग भी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है कई बार अगर आपको लॉजिक ना मिले, तो कोडिंग डिकोडिंग के भी कई बार 1 या 2 सेट आ जाते हैं एंड वो अगर आपको सॉल्व हो गया तो इट्स गुड इनफ क्योंकि एक सेट में मोस्टली 3 से 4 क्वेश्चन कई बार होते हैं। और अगर नहीं सॉल्व हुआ तो आई वुड एडवाइस कि आप कोडिंग डिकोडिंग को कुछ भी रैंडम गेस मार के अगर हो सकता है फर्स्ट या सेकंड स्टेप तक पहुँच गए हो कोडिंग डिकोडिंग के, तो अगर उससे कोई क्वेश्चन निकल रहा है तो ठीक है, नहीं तो स्किप मारें क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। So yeah, this is some important topic and some you know tip which I can give you for NMAT exam. So if I have to give some strategies, my insight about NMAT exam. सबसे पहले तो ऑर्डर अपना पूरा वाइडली चूज करो जिस ऑर्डर में आपको एग्जाम देना है। तो पर्सनली लाइक मैं फर्स्ट सेक्शन रखता था लैंग्वेज का, देन लॉजिकल का, देन कॉन्ट्स का। एंड मेरा लॉजिक इसमें ये था क्योंकि कैट में पहली बात तो एक वो होता है अपना ऑर्डर होता है एग्जाम देने का। ऑल्सो लैंग्वेज में आपको आरसी पढ़ने होते हैं, तो अगर आप फ्रेश माइंड से आरसी पढ़ेंगे तो इट विल बी बेनिफिशियल, आप स्पीड में लाइक आरसी पढ़ पाएंगे। ऑल्सो लॉजिकल में भी क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग आती है, तो उसमें भी कई बार पैराग्राफ होते हैं, उसके बेस पर आपको क्वेश्चन करना होता है, तो आपको रीडिंग अच्छी करनी होती है। तो देन आई गो फॉर लॉजिकल एंड देन गो फॉर कॉन्स। ऑल्सो लाइक कॉन्स मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग सेक्शन था, तो उसमें लाइक अगर मेरा थोड़ा मे बी एंड में थोड़ा थकान भी हो गई तो स्टिल आई कैन एस इन कॉन्स बिकॉज वो मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग सेक्शन था। उसके बाद आपको एक्यूरेसी पे बहुत और स्पीड पे बहुत फोकस करना है। और एक्यूरेसी भी आपको उसमें थोड़ा ऐसे करना है कि आप लगातार कोई क्वेश्चन गलत ना करें, क्योंकि अगर आपने लगातार क्वेश्चन कोई गलत कर दिया फिर आपको इजी क्वेश्चन आते रहेंगे। तो आप लाइक स्ट्रैटेजी ऐसे बनाए कि लगातार कभी भी 3 क्वेश्चन नहीं गलत होने चाहिए, मैक्स 2 क्वेश्चन गलत हो। तो या यू हैव टू फोकस ऑन दैट एंड टाइम ऑल्सो, क्योंकि टाइम काफ़ी कम है इसमें। एंड इसमें एटलीस्ट आपको 7-8 फुल लेंथ मॉक्स देने हैं, चाहे आप एनमैट के ऑफिशियल मॉक्स खरीदिए, वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। उसमें वो लाइक सिर्फ सही आंसर बताते हैं, लाइक प्रॉपर उसको सॉल्व करने वगैरह का नहीं बताते। बट आप एनमैट के ऑफिशियल मॉक्स खरीद सकते हैं, चाहे वो थोड़े एक्सपेंसिव भी हैं। आई गेस 1000 और 1200 के 3 मॉक्स देते हैं वो, और एक आध फ्री भी देते हैं। तो फ्री वाले तो ज़रूर अटेम्प्ट करें, क्योंकि एनमैट अपना स्कोरिंग का जो एल्गोरिथम है वो रिवील नहीं करता। तो अगर आप ऑफिशियल मॉक देंगे तो आपको अपना एग्जैक्ट स्कोर पता चल सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने जब 2023 में एनमैट के ऑफिशियल मॉक्स खरीदे थे, उसमें मेरा एवरेज स्कोर था 225 और मे बी 220 के अराउंड, एंड आई स्कोर्ड 240। इट्स वेरी क्लोज। In 2024, when I gave NMAT official marks, I was scoring around 255 or 250, and मैंने 258 ही स्कोर करा। तो इट्स ऑलमोस्ट एग्जैक्ट। बट जब मैं मॉक्स दे रहा था तो इन 2023 इन मॉक्स आई वाज गेटिंग अ स्कोर ऑफ 180 और 200, एंड देन आई स्कोर 241 इन एक्चुअल एग्जाम। और इन 2024 आई वाज scoring in unofficial marks, I was scoring in the range of 210 or 220 and I scored 58। उसका रीज़न ये है क्योंकि एनमैट के जो स्कोरिंग का एल्गोरिथम है वो काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को नहीं पता। वो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत लाइक वो भी एग्ज़ाम देने चाहते हैं तो अपनी नॉलेज के एग्ज़ाम से नॉलेज के हिसाब से वो कर लेते हैं, बट दे डोंट नो द एग्जैक्ट एल्गोरिथम। सो एनमैट के ऑफिशियल मार्क्स आपको देने चाहिए। ऑल्सो लाइक यू कैन परचेज एनमैट ऑफिशियल गाइड, उसमें भी आपको कुछ-कुछ क्वेश्चंस मिल जाएँगे लाइक एनमैट रिलेटेड, लाइक अबाउट द टॉपिक एटसेट्रा एटसेट्रा। बट इट्स नॉट लाइक नेसेसरी कि आप एनमैट की ऑफिशियल गाइड खरीदिए, लाइक मैंने भी नहीं खरीदी थी। यू कैन परचेज एनमैट ई-बुक्स और मे बी सम प्रैक्टिस मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट, मे बी एनी रेप्यूटेड वन। वो लाइक ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ऑफिशियल गाइड से, बट ऑफिशियल मॉक्स आई वुड सजेस्ट कि आप खरीद सकते हैं। एंड आपको रीअटेम्प्ट स्ट्रैटेजी भी लाइक बनानी पड़ेगी, क्योंकि जो नासिम इंजी एंड लाइक कुछ कॉलेजेस आपका सिर्फ फर्स्ट लाइक एग्जाम लेंगे एनमैट का, तो आपको ऐसे देना है कि आपको फर्स्ट में ही बेस्ट देना है। ऑल्सो like if you are not aiming for NIMS, if you are aiming for some other institutes, so आपको अपने रीअटेम्प्ट स्ट्रैटेजी भी थोड़ी बनानी होगी उस हिसाब से। So yeah, that's all for today's video. I know थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है एंड लाइक अभी मैं थोड़ा अनप्रोफेशनल वो वीडियो बनाने में लाइक ना माइक है मेरे पास, एंड बट धीरे-धीरे I will improve, and in this series I'm going to make some other videos related to NIMS and MET exam. Also like I'm thinking कि मैं थोड़ा कुछ टीचिंग करते हुए भी related to NMAT topics and CAT topics वीडियो बनाऊँ। So yeah, if you like this video, share it with your friends in groups, CAT preparation groups. It will be helpful for them also. And thank you for watching this video. Bye bye.